हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो द पैलेस ऑफ इल्यूजन. In the first part I have discussed about the story as well as one important question, and in this video I am going to discuss another important question, and that is discuss the Palace of Illusion as a feminist text. So first let's start with an introduction. In the 20th century, women's writing is considered as an influential medium of modernization and feminist statement. तो 20th century में जो women's की writing थी उसको लोग क्या कंसिडर करते थे? मीडियम ऑफ मॉडर्नाइजेशन. क्यों ऐसा होता था? क्योंकि इससे पहले विमेंस लिखते नहीं थे, उनको इतना फ्रीडम नहीं था, और इनफैक्ट अगर लिखते भी थे तो वो दूसरे के नाम पे, मेल के नाम पर लिखते थे, और साथ ही साथ उनका जो लिखना था ये फेमिनिस्ट स्टेटमेंट होने लग गया. द पैलेस ऑफ इल्यूजन बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी कैन बी एनालाइज्ड एज फेमिनिस्ट टेक्स्ट थ्रू सेवरल डायमेंशंस. तो विमेन रिलेटेड इश्यूज़ को ये सारे विमेन राइटर्स अपने नॉवेल में इंक्लूड करते थे, उसको प्रेजेंट करते थे. सो नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू डिस्कस वेदर द टेक्स्ट इज फेमिनिस्ट और नॉट. सो व्हाट इज फेमिनिस्ट टेक्स्ट? अ पर्सन हु सपोर्ट फेमिनिज्म, who believe in feminism, or one who believe in equal right for women. So you can say Divakaruni can be a feminist, and the text is also feminist because the text supports the equal right for women. Her text has given importance to a woman, and that is Draupadi. So the following are the points through which we can say that text is feminist text. First is narrative perspective. The novel is a retelling. मतलब ओरिजिनल जो टेक्स्ट था वो महाभारत था और इसको दोबारा लिखा गया, अलग तरीके से लिखा गया, तो इसको हम रिटेलिंग कहेंगे. सो द नॉवल इज अ रिटेलिंग ऑफ द इंडियन एपिक महाभारत फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द्रौपदी, अ सिग्निफिकेंट फीमेल कैरेक्टर हु इज़ ऑफन रेलिगेटेड टू द बैकग्राउंड इन ट्रेडिशनल अकाउंट्स. तो ट्रेडिशनल अकाउंट क्या था? जो व्यास ने लिखा था महाभारत, वो ट्रेडिशनल अकाउंट है. उसमें द्रौपदी का रोल जो है बहुत ही पीछे दिखाया गया है, लेकिन इस नॉवल में उनको सेंटर में रखा गया है. By placing Draupadi at the center of the narrative, Divakaruni gives voice to her thoughts, feelings and experiences, thus highlighting women's perspectives and agency in predominantly male-centric epic. The next point is character agency. What is character agency? Means here the character is given the choice. So Divakaruni has given her female protagonist choice. Draupadi is portrayed as a complex, multidimensional character with her own desires, ambitions and flaws. This portrayal contrasts with traditional depiction of women in epics as mere archetypes or symbol. तो ये जो नॉवेल है वो ट्रेडिशनल टेक्स्ट से एकदम अलग है, एकदम अपोजिट है. Draupadi's assertiveness, intelligence and emotional depth emphasize the idea that women, like men, have a right to their own narratives and destinies. Then next point is themes of patriarchy and power. So what is patriarchy? Patriarchy is a social condition where men gets all the rights, all power and control. So this novel present Draupadi's struggle in this type of society, patriarchal society. नॉवल में क्या दिखाया गया है? द्रौपदी कैसे स्ट्रगल करती है, अपने राइट के लिए कैसे फाइट की, उसको जो ह्यूमिलेट किया गया उसके अगेंस्ट कैसे खड़ी हुई, ये सारी चीज़ें नॉवल में बताएगी. इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो नॉवल है वो एक तरीके का क्या है, फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, फेमिनिज्म पे बेस्ड है. So the novel explores the theme of patriarchy and the power dynamic within a deeply hierarchical society. Draupadi's struggle against the constraint imposed by her gender and her attempts to navigate a male-dominated world highlight the systematic oppression faced by women. तो इसमें यही दिखा रहे हैं कि women को कैसे patriarchal society में डिमीन किया गया है. जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पर लगाया डाइस के गेम में, तो उससे उसका कंसेंट नहीं लिया, इसलिए सभी के सामने उसने अपनी आवाज़ उठाई. इवन युधिष्ठिर जो उसका हस्बैंड था उसके अगेंस्ट भी गई कि मतलब उसने बिना उससे पूछे ये काम कैसे किया. और साथ ही साथ वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग थे, मतलब जो गार्जियन जैसे लोग थे वहाँ, उन लोग ने भी कुछ स्टैंड नहीं लिया. तो द्रौपदी ये सारे सिस्टम के अगेंस्ट उसने अपना आवाज़ उठाया. हर एक्सपीरियंसेस shed light on the limitation and expectations placed on women both in her time and by extension in contemporary society. The way the character of Draupadi was presented in the original text and in this text, means the text which is written by Chitra, is completely different. The next point is interrogation of traditional roles. So interrogation means to ask question. So Divakaruni through her character challenges the traditional role of gender. तो जो ट्रेडिशनल रोल क्या है जेंडर का,
कि औरतें जो हैं वो घर का काम करें, आर्ट वर्क में इन्वॉल्व रहे, और जो मेन होते हैं वो वॉरियर्स होते हैं, ब्रेड अर्नर्स होते हैं। तो दिवाकरुणी के जो कैरेक्टर है द्रौपदी, ये सारे रोल को चैलेंज करती है और जो टिपिकल एक्सपेक्टेशन रहता है हर विमेन से, उससे वो रेजिस्ट करती है। Her dissatisfaction with her roles as a daughter, wife and queen reflects a broader critique of how a woman's identities are often confined to their relationship with men. तो जो उसका टिपिकल रोल था उससे वो डिससेटिस्फाइड थी। This questioning aligns with feminist concerns about the need to redefine and expand the roles available to women. The next point is sisterhood and female solidarity. What is the meaning of solidarity? Solidarity means a group of people who supports other group. तो यहाँ पे एक फीमेल का ग्रुप दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, दूसरे फीमेल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये नॉर्मल फेमिनिस्ट टेक्स्ट इसलिए भी है क्योंकि ये हाईलाइट करता है फीमेल का रिलेशनशिप, इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल रिलेशनशिप, कि कैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। द्रौपदी का जो दूसरे फीमेल कैरेक्टर के साथ बॉन्ड है, अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ जो सुभद्रा थी, उसको वो कितना सपोर्ट करती थी। और जब एक फ़ीमेल दूसरी फीमेल को सपोर्ट करती है तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ता है, उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन अगर वो दोस्त बन जाए, उसको सपोर्ट करे, तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। सो द नॉवल ऑल्सो हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ फीमेल रिलेशनशिप्स एंड सॉलिडेरिटी। द्रौपदीज बॉन्ड विद अदर फीमेल कैरेक्टर्स सच एज हर सिस्टर इन लॉ Subhadra offer glimpses into the support networks that women create to survive and resist patriarchal oppression. तो द्रौपदी का अपने सिस्टर इन लॉ को सपोर्ट करने से या फिर दूसरे कैरेक्टर को सपोर्ट करने से क्या हुआ, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ कि ये लोग पेट्रियार्कल सोसाइटी में, मतलब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। दीज रिलेशनशिप अंडरस्कोर द फेमिनिस्ट आइडिया ऑफ सिस्टरहुड एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स किसी भी बुरी चीज़ से अपने आप को बचाना। नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन। The novels of the women writers consist of latest burning issues related to women exist in the society since long. तो women writers mostly ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करते थे जो औरतें बहुत पहले से सहते आ रही हैं। प्रतिभा राय एंड चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी हैव रिवाइज्ड द मिथ ऑफ द्रौपदी इन देयर नॉवेल्स। तो यज्ञसेनी भी द पैलेस ऑफ इल्यूजन जैसा नॉवल है, उसमें भी महाभारत के बारे में बताया गया है, द्रौपदी के बारे में बताया गया है, लेकिन दोनों राइटर्स ने इस कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। सो बोथ द राइटर्स हैज प्रेजेंटेड द्रौपदी एज अ पायनियर। पायनियर मीन्स द फर्स्ट पर्सन टू डेवलप ह्यूमन नॉलेज और कल्चर, मतलब जो पहला हो विमेन की डिग्निटी को मेंटेन करने की शुरुआत की, उसके इक्वल राइट के बारे में बात की गई है। सो दे प्लेस्ड द्रौपदी एज अ पायनियर ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया। शी वॉज गिवन इक्वल राइट्स विथ मैन एंड हार्डली एनी विमेन कैन स्टैंड आउट लाइक हर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंपैरेटिव लिटरेचर से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।